یسوع مسیح کے زندہ جلالی پرفضل نام میں سب کو اسلام. آواز بہت کم ہے. سب کو اسلام. جتنے لائیو دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی میری طرف سے سلام, اور جتنے آپ چرچ میں موجود ہیں لائیو دیکھ رہے ہیں آپ سبوں کو عید پینتیکوس بہت بہت مبارک ہو. جو بھی بہن بھائی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس کو بھی وش کیجئے کہ یہ عید پینتیکوس بہت بہت مبارک ہو. آج خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں گہرے طور پر کام کرے گا. ہالےلویا ہالےلویا. خوبصورت ورشپ کے لیے کوائر کوائر بڑی پیاری لگ رہی ہے. خوبصورت شعلے بھی جو ہیں فائر جو ہے وہ بھی انہوں نے ایک بیج کی صورت میں لگائے ہیں which represents also Holy Spirit. تو آئیں کوائر کے لیے, دائم بھائی کے لیے, ساری ورشپ کے لیے زوردار تالیاں بجا دیجئے. پریز دی لارڈ. ہالےلویا. آئیں ہم جلدی سے کلام کی طرف بڑھیں گے. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. آج کا میرا ٹاپک ہے ہولی اسپرٹ آور ہیلپر. روح القدس ہمارا مددگار. ہالےلویا. کتنوں کا ایمان ہے کہ آپ کا مددگار ہولی اسپرٹ ہے؟ ہالےلویا. پریز دی لارڈ. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. آج جس عید کو, جس دن کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں میرے عزیزو, یہ پیسج, یہ حوالہ جو ہے ہمیں اعمال کی کتاب اس کے 2 باب کے اندر ملتا ہے. اور میرے عزیزو ورڈ لفظ پینتیکوس جو ہے عبرانی کے اندر اس کا جو نام ہے وہ شاووت ہے, یعنی فرسٹ فریش فروٹس, تازہ پھل. اور میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ عید فصح کے بعد 50ویں دن جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوس جو ہے وہ منائی جاتی تھی. اور کیا ہے کہ ہارویسٹ کی جو یہ عید تھی وہ سیلیبریٹ کی جاتی تھی. لوگ جب اپنی فصل کو کاٹتے تھے تو فصل کے پھولے لیے ہوئے خدا کے گھر میں آتے, خداوند کی شکر گزاری کرتے کہ خدا نے ہمیں مہیا کیا ہے اور اب ہمارے پاس اتنا اناج ہے کہ ہم سال بھر اسے کھا سکے. تو وہ شکر گزاری کرتے, اور شکر گزاری کرتے ہوئے جو ہے اس عید کو جو ہے وہ مناتے تھے. اور میرے عزیزو اگر ہم اس عید کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو پرانے عہد نامہ کے اندر میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں خروج 23 باب اور اس کی 16 آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہ اصل سیاق و سباق کے اندر اگر ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو فصل کاٹنے کی عید کہا جاتا ہے. عید فصح کے بعد 50ویں دن آتی ہے اور یہودی لوگ جو تھے اس دن بڑی خوشی مناتے تھے. کیا تھا کہ بڑا جشن مناتے تھے کہ خدا نے انہیں فصل بخشی ہے. لیکن میرے عزیزو یہ واقعہ جو میں اور آپ ہم آج جس سے دیکھ رہے ہیں, جس سے منا رہے ہیں, عید پینتیکوس پہلے سے ایگزسٹ کرتی تھی, لیکن جس دن کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج وہ یہ ہے کہ جس دن روح القدس کا نزول ہوا. اور وہ لوگ جو ہیں پہلے کیا تھا, اس کو ہارویسٹ کی فصل کے طور پر سیلیبریٹ کرتے تھے, لیکن اگر ہم اس سے اعمال کے اندر دیکھیں تو ہمیں یہاں پر سول ہارویسٹ نظر آتی ہے, روحوں کی فصل کی کٹائی نظر آتی ہے. ہالےلویا. پریز دی لارڈ. تو آئیے خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے. میرے ساتھ اپنی بائبل کو کھولیے, اعمال اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 4 آیات ہم پڑھیں گے. لکھا ہے جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے, اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا, اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں, اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث خداوند کا
शुक्र हो। मेरे अजीजों, यहाँ पर हाँ इस हवाले के अंदर हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ पेंटिकॉस्ट हमें नजर आता है और 4 चीजें जो है वो नजर आती हैं। पहली बात, टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, रूह कुदस से भर जाना। दूसरी बात यहाँ पर हमें नजर आती है, बी बैप्टाइज्ड ऑफ द होली स्पिरिट, रूह कुदस के बपतिस्मे को लेना। और फिर हम देखते हैं थर्ड, एन आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट, रूह कुदस का गहरा बहाव जो है वो हमें नजर आता है। और फिर चौथी बात, द ओवरफ्लो ऑफ द होली स्पिरिट, आउटपोरिंग यानी उंडेला जाना और ओवरफ्लो के इतना उंडेला जाना कि उससे लबरेज हो जाना। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम रूह कुदस देखते हैं जब वो उन लोगों पर नाजिल हुआ। कब मेरे अजीजों? जब वो सब एक जगह जमा थे। आज इब्लीस जो है डिवीजन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर, किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर, किसी भी जगह पर ईमानदार तो छोड़े बल्कि खादमीन को एक जगह इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्योंकि क्या होता है कि हर कोई इधर को जाता है, कोई इधर को, कोई किसी एक बात पर मुत्तफिक नहीं होना चाहता। क्या है कि हम अपने ख्यालात पेश करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ चर्च, अगर आप चाहते हैं कि आप रूह कुदस से भर जाएं, अगर आप चाहते हैं कि रूह कुदस का बपतिस्मा मिले, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में उंडेला जाए, ना सिर्फ उंडेला जाए बल्कि आप लबरेज हो जाए, तो आपको वन स्पिरिट होने की जरूरत है। ये जमात तो 120 की है, लेकिन मेरे अजीजों, दे आर वन। उनकी सोच एक थी, दे आर वन सिटिंग ओवर देयर, और वो एक जगह पर जमा होकर दुआ कर रहे थे। ये नहीं कि वहां पर एक गैदरिंग जमा हो गई है तो क्या है कि 3 लोगों ने कोई अपना ही टॉपिक शुरू किया हुआ है, 4 लोग आज के हालात की जिक्र कर रहे हैं, आज के हालातों की वजह से परेशान है। मेरे अजीजों, अभी हम गीत गा रहे थे, रूहे पाक चटाना नो, शैतान दी जिनियां भी दीवारां उच्चियां क्यों ना हो, मेरे अजीजों, उसकी नींवें जो है वो कच्ची हैं और उन नींवों को आप नहीं गिरा सकते, आप नहीं हिला सकते। लेकिन आपका मसीहा, आपका खुदा, जो खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस है, वो उन नींवों को गिराने की कुदरत रखता है, वो उन दीवारों को गिराने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, ईद पेंटिकॉस्ट को अगर आज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आइए वन स्पिरिट में आ जाइए, एक जगह इकट्ठे हो जाइए। अगर आप खानदान की सूरत में हैं तो मेरे अजीजों, खानदानों को आज जरूरत है इकट्ठे होने की, आज जरूरत है कि एक सोच होने की, एक इकट्ठी जगह पर बैठ के। अगर कोई एक अच्छा काम कर रहा है, हम क्या करते हैं, ले तू ये काम करने लगा है, थोड़ा दिन बाद ही एंज हो जाना है। Why not we encourage one another? हम क्यों एक दूसरे को इनकरेज ना करें, हम क्यों एक दूसरे की ढाल क्यों ना बने। मेरे अजीजों, आप एक दूसरे की ढाल तब बनेंगे जब खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी के अंदर होगा, जब खुदावंद आपके अंदर काम कर रहा होगा। और फिर हम देखते हैं कि जब वो एक जगह जमा थे तो यका आसमान से आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं दिस इज वन ऑफ द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। बहुत से लोग आज ईद पेंटिकॉस्ट के दिन, मैं चाहती हूं कि अगर आप ऐसा कंसेप्शन रखते हैं, आप ऐसी सोच रखते हैं कि रूह कुदस का नज़ूल सिर्फ गैर जुबाने ही है, तो आइए अपनी सोच को
तब्दील कीजिए. इट इज वन गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट. गैर जुबान जो है ये रूह कुदस का एक तोहफा है, एक एक्सप्रेशन है, बट देयर आर सो मेनी मोर एक्सप्रेशन. हम समझते हैं कोई चर्च में हो गैर जुबान च दुआवां कर रहे हैं, ए तो ज्यादा ते पाक रूह नाल भरिया होया. कोई भी नहीं है. अगर उसको चर्च के बाहर ही देखें या उसके घर की जिंदगी के अंदर देखें तो हो सकता है कि उस शख्स ने घर वालों के नाक में दम किया. मेरे अजीजों, जब खुदा का पाक रूह जिंदगी में आता है तो तब्दीली जिंदगी के अंदर आती है. फिर हम यूनिटी में रहना शुरू कर देते हैं, पर हम एक दूसरे की बेहतरी चाहते हैं, हम एक दूसरे के लिए भलाई के काम करते हैं, क्योंकि जब रूह कुदस हमारी जिंदगी में होता है, वी आर ऑपरेटिंग इन द हैंड ऑफ गॉड. हम खुदा के हाथ में रहकर काम करते हैं. फिर हम इब्लीस के काम नहीं करते. इब्लीस के काम क्या है? हसद, तफरीके, लस्ट, नफरत, लड़ाई झगड़े. ये क्यों हमें नजर आते हैं? क्योंकि हम जो है खुदा के पाक रूह को रंजीदा करते हैं. बाइबल के अंदर क्लियरली लिखा है हम बातों बातों में खता करते हैं और खुदा के पाक रूह को रंजीदा करते हैं. होली स्पिरिट इज वेरी सेंसिटिव. मेरे अजीजों, खुदा का पाक रूह बहुत ही सेंसिटिव है. आप जब दुनियावी काम करते हैं, जब ऐसे काम करते हैं, तो होली स्पिरिट क्या है? इट गेट सेपरेटेड फ्रॉम यू. वो आपसे जुदा हो जाता है. इसलिए मेरे अजीजों, आइए खुदा के हाथ में रहिए और उसके पाक रूह के अंदर अपनी जिंदगी को बसर करें. अगर हम ईमाल दूसरे बाप की 41 वर्ष से ही मेरे अजीजों, बल्कि 43 वर्ष हम देखते हैं कि क्या हुआ, और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिया से जाहिर होते थे. ये खौफ जिसकी बात हो रही है, इट्स अ होली फियर. ये पाक खौफ है. आज मेरे अजीजों, बहुत से लोग खुदा के खौफ के अंदर रहकर जिंदगी बसर नहीं करते. जब अपने रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जिंदगी बसर कर रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कौन हमें देख रहा है. लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा की आंखें पूरी दुनिया की सैर करती हैं. हो सकता है आपकी बीवी, आपकी माँ, आपका बाप आपको नहीं देख रहा, लेकिन whatever you are doing, अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं, अगर आप कोई बुरा काम कर रहे हैं, तो खुदा आपको देख रहा है. खुदा के खौफ में रहना शुरू कर दीजिए. ये लोग जिनको हम देखते हैं कि पतरस ने जब कलाम सुनाया उनके दिलों पर चोट लगी, आज मैं चाहती हूं कि आज के कलाम के वसीला से आपके दिलों पर भी चोट लग जाए, ताकि आप भी हकीकी तौर पर तौबा करके खुदा के खौफ के अंदर जिंदगी बसर करना शुरू कर दें. जब खुदा का खौफ आपकी जिंदगी में होगा ना, तो फिर कोई बुराई आपकी जिंदगी में नहीं होगी. कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा होना, लोग बड़े मुतात होके रहते हैं कि कैमरा देख रहा है, हम जो है इसमें कैप्चर हो जाएंगे. What about the eyes of God? जो दुनिया का क्रिएटर है, the creator of this world, मेरे अजीजों, इस कुल कायनात को बनाने वाला, वो आपको देख रहा है. इसलिए इस होली फियर को, इस पाक खौफ को अपनी जिंदगी में ले. और ये वो लोग जो 30,000 आदमी थे मेरे अजीजों, फर्स्ट बर्थ ऑफ द चर्च, जो हमें यहाँ पर अमाल की किताब में मिलती हैं, उनके दिलों पर चोट लगी. खुदा के खादमी ने जब कलाम सुनाया, कब? जब वो भी रूह से मामूर थे, तो लोगों के दिलों पर चोट लगी. और क्या है? हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशानात रसूलों के जरिया से खुदावन ने वहां पर. फिर आगे देख लीजिए, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह
रहते थे। साडा की हाल है। आज हम अक्सर देखते हैं हमारा सफर ही नहीं खत्म होता, एक चर्च से दूसरे चर्च, दूसरे चर्च से तीसरे चर्च। हम कहते हैं अगर 4 इतवार है, एक इतवार हम उस चर्च चले जाएं, वहां से आगे चले जाएं, यहाँ से भी कुछ मिल जाए, वहां से भी कुछ मिल जाए। चर्च तब्दील करने से आपकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आएगी। आइए खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में ले और उसी वक्त आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आ जाएगी। हालेलुया। फिर मेरे अजीजों, आप एक जगह ही रहेंगे। फिर दोबारा इकट्ठे होने, एक जगह पर रहना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3000 की तादाद मेरे अजीजों, जब क्या है कि लोगों, खुदा ने इनके दिल पर चोट लगाई खुदा के खादमीन के कलाम के वसीला से, तो ये नहीं हुआ कोई इधर को चला गया, कोई इधर को चला गया। आज हम देखते हैं बहुत से लोग चर्च आते हैं 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, उसके बाद वो आपको चर्च नहीं नजर आएंगे। चर्च को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, खुदावन का शुक्र है। अगर एक फैमिली जाती है, खुदावन 4-5 और फैमिलीज दे देता है। लेकिन क्या है, शिफा मिल जाती है। फिर बल्कि कई लोग तो ऐसे हैं चर्च जाना भी छोड़ देते हैं, कहते हैं एक ही तो छुट्टी है, सारा हफ्ता हम बड़ी मेहनत करते हैं, अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हमारे बच्चों को कोई पूछे, रात ये अपने कजन से फोन पे बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे सुबह तो लेट उठना है ना, तो कहने लगे नहीं, संडे को हमारी छुट्टी नहीं होती, सैटरडे इज जस्ट अ हॉलीडे फॉर अस। क्यों? क्योंकि टाइम पर उठकर हमने चर्च जाना है। फॉर अ बिलीवर, ईमानदार के लिए इस बात को नोट कर लीजिए, देयर इज नो हॉलीडे ऑन संडे। ईमानदार के लिए है इतवार के दिन कोई छुट्टी नहीं है, बल्कि अगर पूरा हफ्ता आप अपने काम करते हैं, तो जैसे ईद पेंतीकोस्त के दिन ये अपनी फसल की शुक्रगुजारी खुदावंद के हुजूर में लाते थे, आप भी शुक्रगुजारी के साथ इतवार के रोज चर्च आया करें कि खुदा ने सारे हफ्ता आपको संभाला। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या है, एक जगह थे और सब चीजों में शरीक थे, यानी दे वर डेस्परेट टू डू द वर्क ऑफ गॉड। जब खुदा के पाक रूह आपकी जिंदगी में होगा, खुदा का खौफ आपके अंदर होगा, तो फिर खुदा के काम करने से आप कभी भी थकेंगे नहीं। आपके पास अपने एक्सक्यूजेस नहीं होंगे, बल्कि आप हमेशा चर्च के लिए अपने आप को अवेलेबल रखेंगे। आज जितने भी चर्च में आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, व्हाट यू आर डूइंग इन योर चर्च। आप अपने चर्च में क्या काम कर रहे हैं। मेरे अजीजों, आज जरा चेक कीजिए, अपने जहन में इस इनिशिएटिव को लाएं, आप टीम को ज्वाइन करें, कोशिश करें कि इतवार के अंदर अगर एक इतवार आप अर्ली आकर अरेंजमेंट में या किसी भी तरह से अगर खुदा के लिए काम कर सकते हैं, that's going to be the best work, वह सबसे बेहतरीन काम होगा। हालेलुया। इन लोगों ने क्या किया, जब रूल कुदस ने इनके दिल पर चोट लगाई तो शरीक हुए खुदा के कामों में। आगे फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ, और अपना माल और असबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। मेरे अजीजों, वो अपने हदिये, अपने फाइनेंसेस जो है वो खुदा के घर के अंदर लेकर आते हैं। सॉरी टू से, आज हम देखते हैं बहुत से लोगों की कंसेप्शन तब्दील हो गई है, सोच तब्दील हो गई है। वो चर्च भी इस नजरिए से जाते हैं, हाँ कभी कलीसिया को जरूरत पड़ सकती है और द पास्टर्स आर देयर टू हेल्प, और खादमीन उनकी मदद के लिए हैं। लेकिन आज हम देखते हैं पाकिस्तान की कलीसिया का कंसेप्शन ही तब्दील हुआ जा रहा है, नजरिया ही तब्दील हुआ चला जा रहा है। हम कहते हैं फलां चर्च ने तो साडा महीने दा
राशन लगाया हुआ है, फला चर्च तो हमें बस भेजता है, तो फिर ही हम चर्च के अंदर आएंगे, फिर ही हम इबादत के अंदर आएंगे। मेरे अजीजों, मेरा मानना है कि अगर आप इतवार की इबादत में आने के लिए अपना एक्सपेंस ही खुद उठाते हैं, क्या है कि आप जो है अपनी मदद के तहत चर्च आते हैं, तो खुदावंद आपको बरकत देगा। मेरे अजीजों, ये खुदा का प्रिंसिपल है कि जो खुदा को देता है खुदावंद उसके खत्ते भरे रखता है। तो इसलिए जो रूल कुदस से मामूर होते हैं वो खुदा के कामों के लिए मेरे अजीजों बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर इन लोगों के बारे में लिखा है कि उन्होंने कोई फिक्र नहीं की, अपना माल असबाब जो कुछ उनके पास था उन्होंने बेच कर खुदा के कामों के लिए दिया, ताकि खुदा का काम जो इवेंजलिज्म का है, खुदा का काम जो है वो बढ़े। आज कलीसिया, what we are doing, हम क्या कर रहे हैं, how much we are giving to the church, आज हम चर्च को कितना दे रहे हैं। मेरे अजीजों, ये जो गिविंग का प्रिंसिपल है, there are promises with it, इसके साथ वादे हैं। आजमा कर देख कि खुदा कितना मेहरबान है। मलाकी की किताब के अंदर लिखा है तेरे खित्ते भरे रहेंगे। बार्न हाउस, जो कनक दाने डालने वाला एक पड़ोला होता है ना, वो कभी भी खाली नहीं होगा। कई लोग हंस रहे हैं, मेरी नानी के घर जो था वो पड़ोला होता था, पड़ोला ही कहते हैं कनक डालने वाला, बार्न जो है इंग्लिश में उसको कहते हैं, और उसमें दाने जो थे वो इकट्ठे किए जाते थे। यानी मेरे अजीजों, खुदावंद आपके रुपए पैसे में, रोटी पानी में कसरत की बरकत देना चाहता है। लेकिन जो बातें आज मैं कर रही हूँ, अगर खुदा का रूल कुदस आपकी जिंदगी में है तो ये सारी बातें भी आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। सिर्फ खाली गैर जुबान बोल लेना काफ़ी नहीं है। आइए रूल कुदस को अपनी ज़िंदगी में लें और एक होने की स्पिरिट को लें, एक दूसरे के लिए बरकत की स्पिरिट को लें, इकट्ठे रहें, खुदा के लिए अपने दिल को खोलें, अपनी मुट्ठी को खोलें, और खुदावंद आपको कसरत की बरकत देगा। और फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे। हैकल में भी किसी और दिल से नहीं जाते थे, बल्कि एक दिल होकर जाते थे। और एक दिल क्या था कि वहां पर जाकर गीत गाऊं। अभी हम गा रहे थे, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। अगर आप ऐसे हो जाए तो इससे और खूबसूरत बात ही कोई नहीं। फिर जो इधर उधर जाके चुगलियां होती हैं, इधर उधर जाके लड़ाई झगड़े होते हैं, कई दफा अक्सर ऐसा होता है कि किसी के घर में पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, कोई ऐसा शख्स जाता है कि वहां जाकर उनके पीस को खराब कर देता है। कोई ना कोई ऐसी बात इब्लीस उनके जरिया से आपके खानदान में लाता है, और फिर क्या है कि आपकी जिंदगी के अंदर लड़ाई आ जाती है। और फिर हम क्या है, जमा होकर और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। मैं ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके दिलों पर खुदा के पाखरू की चोट लगी, जिन्होंने तौबा की, जिन्होंने गुनाहों को तर्क किया और यीशु को अपना दिल दिया। आज आप कहते होंगे कि मैंने भी यीशु को दिल दिया है, इतने साल पहले मैंने भी तौबा की है, लेकिन क्या आपकी ज़िंदगी में ये बातें हैं? अगर नहीं तो आइए मेरे अजीज़ों, आज रूह कुदस को पूरे तौर पर अपनी ज़िंदगी में लें। और फिर हम देखते हैं, और हम्द के गीत गाते और सब लोगों को अजीज रखते। या ये नहीं लिखा अपने आनु अजीज रखते, बल्कि सब लोगों को अजीज रखते। वी आर फैमिली इन द चर्च। चर्च के अंदर आप खानदान है। जब आप आते हैं, जो भी आपके साथ बैठता है, जब आप जाने लगते हैं, ज़रूर उसे मिला करें, उसका हाल पूछा करें, खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटे। अगर कोई दुख में है, एक दूसरे के लिए दुआ करें और बरकत चाहे। ऐनी के सारी मीटिंग नाल दे तो बैठे डिस्टर्ब ही होंदे रहन। होता ना ऐसे, घर जाके कहेंगे आज तो मैंने बड़े जड़ा प्रॉब्लम हुई, जड़ा मेरे नाल बैठा सी, वो आपको क्या कह रहा है?
खुदा ने उसको भी शबीह पर बनाया है। आइए अपने अंदर से इन बातों को निकालिए। ये बातें निकलेंगी तो आप रूह कुदस से भरेंगे। ये बातें निकलेंगी तो खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी के अंदर कसरत से जुम्बश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और फिर लिखा है, और जो नजात पाते थे उनको हर रोज उनमें मिला देते थे। वो जो चर्च था वो कैसे बढ़ रहा था। आज अगर हम देखें कोई गुनाह में हो तो पहले दिन चर्च आ जाए ना तो तुसी आके कहोगे पादरी साहब तानू नहीं एदा पता, मैनू एदा पता है, ये शख्स तो ऐसे है, ये तो वैसे है। आए भाई आई बहन, मैं तुझे बताना चाहती हूँ, आपको नहीं पता कि किस वक्त उसने यीशु से तौबा की है और यीशु ने उसका अपना बेटा बना लिया है, अपनी बेटी बना ली है। इसलिए जब कोई नया ईमानदार चर्च में आता है, वी नीड टू वेलकम, हमें उसे वेलकम करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं खादम दूसरे खादम को वेलकम नहीं करता। हम कहते हैं किथों आ गया, उन्हें अपनी जगह बना लेगा। मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। जो जगह आपकी है उसे कोई नहीं ले सकता। इसलिए आइए, अगर आप खुदा के पाक रूह से भरे हुए हैं तो अपने अंदर से इस स्पिरिट को भी निकालिए कि शायद कोई मुझसे आगे ना बढ़ जाए। आइए एक दूसरे का हाथ पकड़िए। जिस तरह रूह कुदस मददगार है, आप भी एक दूसरे के लिए मददगार बन जाइए। जब आप एक दूसरे को बढ़ाएंगे, खुदावंद आपको बढ़ाएगा। क्योंकि कलाम में लिखा है जो दूसरों को सैराब करता है, खुदावंद किसे सैराब करता है? उससे सैराब करता है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जिसकी जिंदगी में खुदा का पाक रूह होता है वो क्राइस्ट सेंटर्ड जिंदगी बसर करता है। फिर मसीह उसकी जिंदगी का दरमियानी होता है। रूह से भरा हुआ शख्स देने वाला होता है। और मेरे अजीजों, अक्सर औकात हम समझते हैं कि रूह कुदस सिर्फ एक पावर है, एक ताकत है। यस, रूह कुदस एक ताकत है, लेकिन उसके साथ साथ ये ना सिर्फ ताकत बल्कि एक डिवाइन शख्स है जिसे जो चाहता है उसे देता है। It's the choice of the Holy Spirit. God is a God of choice. When, where, how much, कब, कहाँ, कितना और किससे देना है, वो रूह कुदस खुद डिसाइड करता है। और मेरे अजीजों, रूह कुदस जो शख्स है वो आजाद शख्स है। मसीह ने कहा मैं जाता, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि तुम्हें दूसरा मददगार भेजे। यूहन्ना 16 बाब के अंदर मेरे अजीजों आप पढ़ सकते हैं। और मेरे अजीजों, रूह कुदस जो है इसकी एक पर्सनैलिटी है, और जैसे यस्सु है वैसे ही खुदा रूह कुदस है। आइए, पुराने अहदनामा के अंदर भी रूह कुदस का जिक्र है। आप में से बहुत से कहते होंगे कि रूह कुदस का वाकया जो है वो तो ईद पेंतीकोस्त के दिन मिला। मेरे अजीजों, लेकिन ये नज़ूल है, बट होली स्पिरिट डज एग्जिस्ट। आइए मेरे साथ जल्दी से पैदाइश उसका पहला बाप और उसकी पहली 2 आयत हम पढ़ते हैं। लिखा है खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमां को पैदा किया, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। और फिर देखते हैं और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और घेराव के ऊपर अंधेरा था। और यहाँ लिखा है और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। फर्स्ट मेंशन अबाउट द होली स्पिरिट इन द बाइबल, खुदा रूह कुदस के बारे में, खुदा की रूह के बारे में मेरे अजीजों यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा हुआ है। और जुम्बश का इब्रानी मतलब अगर हम इंग्लिश में देखें तो है मूविंग ओवर, यानी अगर हम उर्दू मायने में इस तरह देख लें, शिद्दत में मंडलाना, किसी चीज के ऊपर बार बार गर्दिश करना, चलते रहना। तो मेरे अजीजों, इट्स नॉट अ पावर ओनली, ये ना सिर्फ रूह कुदस सिर्फ ताकत है, बल्कि इट्स अ
पर्सनैलिटी, और हम देखते हैं कि उसकी रूह जो है वो फुल ऑफ मर्सीज है, वो रहम और तरस से भरा हुआ है, और वो आपके गिर्द मंडलाना चाहता है, आपको चारों ओर से घेरे में लेना चाहता है, क्योंकि वो आपकी फिक्र करता है। मेरे अजीजों, आइए अगर हम खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना 16 बाब लास्ट हवाला हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। कितनों को कलाम के वसीला से बरकत मिल रही है? हालेलुया! जोरदार तालियां खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के लिए बजा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। 7वीं आयत के अंदर, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, क्योंकि अगर मैं जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे, अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उससे तुम्हारे पास भेज दूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, अमाल चैप्टर 2 जो हमने पढ़ा, हम देखते हैं कि वो 120 की जो जमात थी, एक जगह जमा थी, वो रूह कुदस के नज़ूल का ये मददगार जिसका वादा खुदा ने किया था, उसने कहा था कि मैं ना जाऊंगा तो वो ना आएगा, लेकिन जब वो गया तो उसने अपने प्रॉमिस को फुलफिल्ड किया, क्योंकि मेरा और आपका खुदा वादों में सच्चा खुदा है। और फिर हम देखते हैं कि जब वो रूह कुदस से भर गए, जो हेल्पर, जो मददगार, मेरे अजीजों, ये नहीं है कि जब मदद में होंगे, मुसीबत में होंगे तभी ये हेल्पर आएगा, बल्कि इस हेल्पर के लिए ये है always with us, वो हमेशा आपके साथ है। as long as you are under the fear of God, जब तक आप खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करेंगे, जब तक आप खुदा के वादों पर अमल करेंगे, खुदा के साथ वफादार रहेंगे, उसका मददगार आपके साथ साथ होगा। और फिर हम देखते हैं जो तब्दीली इन 120 के जिंदगी में आई, क्या है? पतरस ने उनसे कहा तौबा करो, दूसरे बाब की 37वीं आयत, और लिखा है पतरस ने उनसे कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब के दौर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। और फिर हम देखते हैं, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। मेरे अजीजों, जब ये ईद पेंतिकोस का वाकया होता है, जब होली स्पिरिट जो उनका मददगार है, जब उनको मिल जाता है, जिसके अंदर पावर है, मेरे अजीजों, जब ये कुव्वत उनको मिलती है तो उनके अंदर दलेरी की रूह आती है। और एक ही दिन में जब रूह कुदस से मामूर होकर उन्होंने कलाम सुनाया, तो 3000 से ज्यादा लोगों ने यीशु को कबूल किया। हार्वेस्ट ऑफ सोल हमें यहाँ पर नजर आती है। तो मेरे अजीजों, वो दलेरी से भर गए, और यहाँ पर हमें फर्स्ट बर्थ ऑफ द चर्च भी नजर आती है। इसलिए जितने भी आज यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, इफ यू आर सिक इन योर बॉडी, अगर आप अपने बदन में बीमार हैं, होली स्पिरिट द हेल्पर इज हियर टू हेल्प यू। रूह कुदस आपके मददगार आपकी मदद के लिए मौजूद है। अगर गुनाह के अंदर हैं, होली स्पिरिट द हेल्पर इज हियर टू सेव यू। खुदा का रूह कुदस यहाँ पर मौजूद है कि आपको निजात दे सके। आइए है टुगेदर वन
Spirit. Let's pray together. آئیے جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں کوائر سے درخواست ہے ہم کورس گائیں گے. آئیے میرے عزیزو میں چاہتی ہوں اسٹیج کے نزدیک آ جائیے. آئیے ہم بھی ون اسپرٹ ہو جائیں. آئے ہم بھی ایک جگہ اکٹھے ہو کر دعا کرنا شروع کریں گے اور خدا کا پاک روح جو ہمارا مددگار ہے ہماری زندگی میں کام کرے گا. نہ صرف آج آپ خالی غیر زبانوں میں دعا کریں گے بلکہ آپ کی سوچ, آپ کا رویہ, آپ کا اٹھنا بیٹھنا تبدیل ہو جائے گا. روح القدس آپ کی زندگی میں کثرت سے کام کرے گا. آئیے خداوند کے مذبح کے پاس آ جائیے. اپنے ذہن سے ساری دنیا کے خیالوں کو نکال دیجئے. اپنی سوچوں کو یسوع کی طرف مائل کیجئے. اسے کہیے آج میں تیرے روح سے بھرنا چاہتا ہوں. جتنے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں آئیے آپ بھی آگے آ جائیے. لکھا ہے کہ آخری ایام میں وہ اپنی روح کو ہر بشر پر اڈیلے گا. وہ اپنی روح کو آپ پر اڈیلنے کو ہے. آئیے اس سے کہیے خالی دامن بھی بھر. اور ربا شاتے رے بے 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 بے. آئیے اپنے ہاتھوں کا آسمان کی طرف بلند کیجئے. وہ اپنے مردہ دل کو نیا کر رہا ہے. اس کا روح قدس آپ کے دلوں پر چوٹ لگا رہا ہے. قدرت کو آپ پر ظاہر کر رہا ہے. آئیے اپنی نظریں اس پر لگا لیجئے.
बख्श दे खुदा, बख्श दे खुदा, अपनी शाहज़ोरियाँ बख्श दे खुदा, अपनी शाहज़ोरियाँ, अपनी शाहज़ोरियाँ। मेरी आहों को दे आज अपने होठों को अपना आसमान की तरफ पुकारिए उसे, हर जिंदगी वो आपको छू रहा है, वो आपके दामन को भर रहा है। खुदा पाक शांति बे 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 बे। आज जो शांति बे 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 बे। छूले हर शांति बे बे बे। खुदा पाक Thank you, Holy Spirit. हालेलुया। हाँ, एक लम्हा के लिए अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए, अपने होठों को खोलिए। वो आपकी जिंदगी में रूह खुदस के तोहफों को भर रहा है। वो आपकी जिंदगी से सारी बातों को निकाल कर अपने कलाम की बातों को, मोहब्बत को, बरकत को, यूनिटी को भर रहा है। वो आपके मुंह के अंदर रूह खुदस को, रूह खुदस आपके मुंह के अंदर गैर जुबानों के तोहफे को भर रहा है। Holy Spirit, we welcome you. Come fill this place, fill the atmosphere. Holy Spirit, we welcome you. पकड़ू, हम तुझे वेलकम और खुशामदीद करते। आइए बुलंद आवाज़ों से दुआ कीजिए। There is a new sound coming out from your mouth. आपके मुंह से नई ज़बानें निकल रही हैं। वो आपकी जिंदगी में ताज़ा मस्सा लेकर आ रहा है। रुकिया, रुकिया, रुकिया। आइए मेरे अजीजों, इस रुकिया को अपनी जिंदगी में लीजिए। दरिया में और रब शांति रे बे 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 बे। उसने कहा तुम रूह खुदस इनाम में पाओगे। वो आपको होली स्पिरिट गिफ्ट दे रहा है। आइए अपने हाथों को उठाइए, आइए आवाज़ों को बुलंद कीजिए, इस तोहफे को ले लीजिए। वो आपकी जिंदगी के अंदर ताज़ा मस्सा और नील रहा है। The Holy Spirit is putting fresh oil in your mouth. खुदावंद आपके गलों को मस्सा कर रहा है। There is going to be healing through the worship. Pastors, the Holy Spirit is renewing with the fresh oil. खुदा का पाक रूह खादमीन को ताज़ा मस्सा दे रहा है। Your cup is overflowing. आपका प्याला लबरेज है, आपका प्याला लबरेज है। खुदावंद आपको, आपके बच्चों को बरकत दे रहा है, बरकत दे रहा है, बरकत दे रहा है। आइए मेरे अजीजों, उसके मस्सा में डूब जाइए, उसके दरिया में डूब जाइए। हम डूब जाए थकरा शांति रे बे 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 बे। हालेलुया, दरिया हालेलुया। जितने नौजवान बेटे और बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं, the Holy Spirit is touching you right now, touching you right now, touching you right now। खुदावंद आपकी जिंदगी में ताज़ा मस्सा को, उसका रूह खुदस आपकी जिंदगी में आ रहा है। Praise Jesus, amen। आइए एक लम्हा के लिए खामोशी इख्तियार कीजिए, दोनों हाथों फुली तौर पर आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। खुदा का रूह खुदस आपकी जिंदगी में है, वो चारों ओर से आपको घेरे हुआ है। उसका रूह खुदस आप पर मंडला रहा है।
वो आपकी जिंदगियों में जुम्बश कर रहा है। लेट्स वेलकम हिम। आपके कानों में रूह कुदस की आवाज आ रही है। आइए अपने दिलों को खोलिए और उसके रूह कुदस को ले लीजिए। होली स्पिरिट, तू एक को छू, पाखरू, टच टच touch everyone in the mighty name of Jesus. Every kind of sickness and diseases, I command to leave their bodies right now in the name of Jesus. हर तरह की अबलीस की तासीरें, बंधन, छुए यीशु के नाम से टूट चुके हैं। अबलीस ने जो आपके गिर्द बड़ी दीवारें डाली थी वो टूट चुकी है। आप आजाद हैं, आप आजाद हैं, आप आजाद हैं। In the mighty name of Jesus. खुदावंद मैं इन हाथों को तेरे हाथों में देती। होली स्पिरिट, तू इन हाथों को छू। आज के बाद ये हाथ जिस चीज को लगे बरकत बरकत पाए। खुदावंद हम तेरी प्रेजेंस के लिए, there is nothing precious than the presence of God. खुदा की हजूरी से कीमती और खूबसूरत कोई चीज नहीं। आइए उसकी हजूरी के लिए उसका शुक्र कीजिए। आइए एक लम्हा के लिए कहिए थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट दैट यू हैव कम अपॉन मी। तू मेरे अंदर है, तू मेरे साथ है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। आज से उसकी रेजरेक्शन पावर, उसकी जी उठने की कुदरत आपकी जिंदगियों में काम कर रही है। लेट्स वेलकम हिम in the mighty name of Jesus. आइए सब बुलंद आवाज से कहिए आमीन, आमीन।